हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे आपकी क्लास 7 की पंजाबी का 5th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है दो कीड़ियां। बच्चों, पाठ बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, बड़े ध्यान से सुनना और फिर हम देखेंगे कि हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। कुड़े अनीशा क्यों पानी विच खेडा जिहा करी जांदी है। बीमार हो जावेंगी, गर्मी नहीं आई, अजे जांदी ठंड है, आजा इधर ठंडे पानी चो। बच्चों, अनीशा पानी विच खेड रही है तो उसदे नानी जी उसनू बुला रहे हैं। ये सब कौन कह रहा है? उसदे नानी जी कह रहे ने कि पानी विच ना खेड, ठंड है, बीमार हो जावेंगी। अनीशा दी नानी ने पानी नाल खेड रही अपनी दोहती नू वरजिया, बुलाया कि अनीशा पानी विच ना खेड। नानी जी मैं खेडा नहीं कर रही हां। हुण अनीशा की जवाब दिंदी है कि नानी जी मैं खेड नहीं रही हां, मैं तां विज्ञान दा इक प्रयोग करके वेख रही हां। अनीशा ने गल पूरी नहीं सी कीती कि उसदे नानी जी उसदे कोल आ खड़ोते ते बोले। ते अनीशा की कर रही सी? साइंस विच इक प्रयोग कर रही सी। ठीक है, की करदी है? हुण नानी ने पूछा कि की करदी है। हुण अनीशा कहंदी है अज साडे मैडम ने दसिया सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਹੈ ਖਾਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੜੂ ਗੁੜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁੜਗੁੜੂ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੜੂ ਗੁੜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ? ਹਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਤਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸੀਗੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦੋਹਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨਵੀਨ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਯਾਨੀ ਅਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਨ, ਆਜਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਦੀ, ਇਹ ਅਨੀਸ਼ਾ, ਇਹ ਨਵੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹੈ।
तो बच्चों ये स्कूल ਜਿਹੜੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ यानी अनीशा ते नवीन दा बहुत ध्यान रखते ने। हाँ बेटे दस की पूछने, नानी ने नवीन तो पूछा कि दस पुत्र की पूछना है। नानी जी साडे स्कूल विच भाषण मुकाबला होने है। नवीन ने कहा अच्छा बोलने दा विशा केड़ा, मतलब केड़े विषय ते तैनूं केड़े सब्जैक्ट ते बोलना है। औगना नूं दूर करके गुण किवें ग्रहण करिए। तो बच्चों सब्जेक्ट की है, केड़ा विषय है, ये तुहानूं ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन दा आंसर है। ठीक है, विषय की सी, अवगुणा नूं दूर करके गुण किवें ग्रहण करिए। ठीक है, विषय सुन के नानी जी थोड़ी देर लई गंभीर हो गए ते फिर बोले इस संबंध विच मैं तुहानूं दो कीड़ियां दी एक कहानी सुणाउंगी हां। हुण बच्चों कहानी बड़ी मजेदार है, तुसी भी सुनना है। अनीशा ते नवीन तां सुन ही रहे ने नानी जी कोल कहानी, तुसी भी उन्हां दी नानी कोलों कहानी सुननी है। दो कीड़ियां दी कहानी। एक कीड़ी सी मिठो मिठो मिठे ते सुघड़ गुना वाली। बच्चे दो कीड़ियां सी, एक तां सी कीड़ी मिठो। ठीक है, उनदा की नां सी मिठो। ਉਹ बड़ी मिठी सी ते सियाणी भी सी। ठीक है, ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ, ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀੜੀ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਰੀ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕੀੜੀ ਸੀ ਸਲੂਣੋ। ਦੂਜੀ ਕੀੜੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਲੂਣੋ ਮਤਲਬ ਨਮਕੀਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਲੂਣੋ। ਸਲੂਣੋ ਬੱਚੋ ਹੁੰਦਾ ਸਲੂਣੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸਨੂੰ। ਲੂਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ। ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਨਮਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੂਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੀੜੀ ਲੂਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪਹਾੜ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜ ਦੇ शिखर उत्ते घूम फिर रही सन। हुण बच्चों मान लो आ तां सलूणो दा हो गया पहाड़, ये हो गया मिठो दा। हुण दोनों घूमन गियां उपर, इत्थे सलूणो गई, इत्थे मिठो गई। हुण दोनों आमने सामने खड़ी हो गई तां गल्लां करन लग गईयां। ठीक है, नेड़े नेड़े सी ना इस वास्ते, ते ये आपदे पहाड़ ते घूमी जा रही सी, मिठो आपदे पहाड़ ते घूमी जा रही सी। हुण दोनों घूम फिर रही सी तां की होया, आवाज मारी, भैन सलूणो की हाल है तेरा। मिठो ने मिठी बाण नाल पुछया, मिठी आवाज नाल पुछया कि सलूणो कोलो, इन्ने मिठो कीड़ी ने सलूणो कोलो पूछा कि तेरा की हाल है। भैन मिठो हाल कादा, सारा दिन खारा सलूणा। हुण सलूणो कीड़ी ने की जवाब दिता, उन्हें जवाब दिता कि हाल तां मेरा खराब ही है, सारा दिन तां मैनू खारा सलूणा खाना पैंदा है, मेरा मूंह दा स्वाद है सारा दिन नमकीन ही रहिंदा है। भैन सलूणो तू इयों कर, कुछ दिन मेरे पहाड़ उत्ते आके रह। हुण उन्हें न्योता दे दिता, बुलावा दे दिता कि थोड़े दिन तू मेरे पहाड़ उत्ते आ जा। मिठो ने की कहा सलूणो नू कि मेरे पहाड़ उत्ते आ जा, तेरा मुंह है मिठा हो जाएगा, तू मिश्री खावेंगी तो तेरा मुंह मिठा हो जाएगा। तो उत्ते आके रही, मिठी मिठी मिश्री खाके आनंद ले, जिन्ना चिर तेरा जी करे रह भावें सारी उम्र भी। एक दिन मिठो ने कहा चंगा भैन आवांगी किसे दिन, वेहल कढ के सलूणो ने जवाब दिता कि हाँ किसे दिन आवांगी। फिर गई सलूणो मिश्री दे पहाड़ उत्ते। फिर एक दिन उनका जी कर पिया, ओ मिठो दे पहाड़ उत्ते चली गई।
ਨਵੀਨ फिर गई सलूनो मिश्री दे पहाड़ उत्ते। नवीन ने नानी तो पूछा कि मिठो दे पहाड़ ते सलूनो चली गई सी जदों उन्हें बुलाया सी। लून छड़ के मिश्री मिठो लून छड़ के मिश्री मिले खान नू होर की चाहिदे है, उह तां भज्जी गई होऊ जिवें आपां चॉकलेट देख के भजदे हन। हना नानी जी। अनिशा फिर बोल पई कि सलूनो तो भज के गई होगी क्योंकि ओनू तो मिठा खान नू मिलना होना है, वो तो भज गई होनी है जिवें बच्चे चॉकलेट नू वेख के भजदे ने। अनिशा ने कहा। ध्यान नाल सुनो बेटे। हुण नानी जी की कहंदी है, मेरी जिहड़ी गल है कहानी है ओनू ध्यान नाल सुनो। इस दी रम डूबी है, आम बातां वर्गी नहीं है हैगी। इस कहानी विच लून नू तुसी समझ लियो जिवें अवगुण होण ते मिश्री नू समझ लियो गुण। चंगे गुण, ठीक है ना। हुण नानी जी ने समझाया जिहड़ी मैं तुहानू कहानी सुना रही हां ਇਹ आम कहानी नहीं है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ शिक्षा ਦਿੰਦੇ है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮਕੀਨ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिंदी ਵਿੱਚ लिख देनी ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਮਕੀਨ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ठीक है, अवगुण ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਮਕੀਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਠੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਣ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ नानी जी, नवीन ने अनीशा ने इकट्ठे बोलिया। सलाहां करदियां सलूनो ने कई दिन लगा दिते। हुण नानी जी ने दस्सिया कि सलूनो सलाह ही करदी रह गई कि मिठो दे पहाड़ ते जाने। इस तरह उन्हें कई दिन लगा दिते। जिवें माड़ी आदत छड्डण दी लोग आलस कर छड्डदे ने। तो नानी जी समझा रहे हैं कि जिवें अपने विच कोई बुरी आदत पै जांदी है तो उहनूं छड्डना बड़ा मुश्किल हुंदा है, बहुत दिक्कत आंदी है माड़ी चीज नूं छड्डण विच। कोई बुरी लत सानूं लग जे, कोई बुरी आदत पै जे तो उहनूं छड्डना बहुत मुश्किल हुंदा है। तो इस वास्ते सलूनो नूं इत्थे बच्चों अवगुण ही क्या है, तो सलूनो ने कई दिन ला दिते मिठो दे पहाड़ ते जाण वास्ते। उवें ही एक दिन उसने सलाह बना लई मिश्री दे पहाड़ उत्ते जाण दी। पर नाल ही उसने सोचिया, हुण जाण तो पहला उसने की सोचिया कि मिठो दे पहाड़ दा तां मेरे पहाड़ दा रंग तां इक्को जिहा ही लगदे कि मिठो दा जिहड़ा पहाड़ है ते मेरा जिहड़ा पहाड़ है दोहां दा रंग इक्को ही है। इक्को किवें है बच्चों? देखो नमक हुंदा है वो भी सफेद हुंदा है, चिट्टा हुंदा है, वाइट हुंदा है। और मिश्री भी वाइट हुंदी है, सफेद हुंदी है, चिट्टी हुंदी है। पंजाबी विच बच्चों आपां चिट्टा कहने हैं, सफेद नूं। ठीक है। तब सलूनो ने की सोचा कि दोहां दा जिहड़ा पहाड़ दा रंग है वो तां इक्को ही है। सोच सोच के ओने लूण दी एक वड्डी डली अपने मुंह विच रख लई ते मन ही मन किया। हुण सलूनो ने की कीता? जांदिया जांदिया एक नमकीन जिहड़ी लूण दी डली सी ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮਿੱਠੋ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ, ਮਿੱਠੋ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠੋ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, मैं भुखी ही रह जावां। क्यों ना मैं आपदे घरों ही कुछ लैके जावां। कई बार बच्चों आपां सोचदे हैं घरों जान लगे चाह आपदे घरों ही पी के जाने। हो सकता है सामने जाइए सामने वाला सानू चाह पियावे या ना पियावे, हो सकता है सानू फ्रूट ही खवा देवे, साडा मन तां चाह पीण ते है तां आपां की करने आपदे घरों ही पी के चले जाने। ठीक है। यही उसने सोचिया सलूनो ने कि मैं जावां ते मिठो कोल हो सकता है मैनू कुछ खाण नू ना मिले तां मैं आपदे घरों ही लूण लैके जावां। तां उहने आपदे मूंह विच लूण दी डली रख लई। चलो जी, हुण सलूनो मिठो दे पहाड़ उत्ते पहुंच गई। मिठो उस नू सारा पहाड़ घुमांदी फिरी। मिठो ने आपदा जिहड़ा पहाड़ सी मिश्री वाला उसनू सारा ही घुमा दिता, पर उसनू मजा नहीं आया सलूनो नू। क्यों नहीं आया?
क्योंकि उनके मूँह विच तां नमकीन ही रखिया होया सी, उन्हें मिठे का स्वाद तो लिया ही नहीं। जे ओहदा मूँह खाली हुंदा तां ही वो कुछ खा पांदी, लेकिन उसने आपदे मूँह विच तां ऑलरेडी ही नमक रखिया होया सी, तां ओहदा मूँह तां फिर नमकीन ही रहा। तरह तरह दियां मिश्रियां दी ढेरियां कोलों लिजा के मिन्नतां करदी रही। उन्हें उहनूं मिन्नतां कीतियां कि भैन सलूनो मिश्री खा लै। तरह तरह दी मिश्री दी डलियां सी उत्थे, वड्डी छोटी। सारा पहाड़ घुमा के सलूनो वापस आ गई। देखो उसने कुछ खाया तो सी नहीं, ठीक है, खांदी तो उन्हें पता चलता ना कि मिश्री का टेस्ट किहो जिहा हुंदा है, उहदा स्वाद किहो जिहा हुंदा है, लेकिन उसने आपदे मूँह विच नमक दी डली ही रखी हुई सी। तो सारा दिन वो घूम फिर के वापिस आ गई, ठीक है। आपने पहाड़ उत्ते पहुंच के आखन लगी, इन्ना लंबा चौड़ा पहाड़ घूमदी फिरी पागला वांगो, मिश्री केड़ी मिली उथों। हुण देखो गलती तो ओहदी आपदी सी ना, उन्हें खाई नहीं मिश्री, तो हुण वो की कहंदी मैं तो पागला वांग उत्थे पागला जिवें ही उत्थे घूमदी रही, मैनू मिश्री तो मिली नहीं खाण नूं। सलूनो अक्की पई सी, अक्की इस वास्ते पई सी, एक तो ओहदा मूँह उत्थे जाण दे बाद भी खारा ही सी, और दूजा वो घूम घूम के थक गई सी, ओनू मजा ही नहीं आया उनके पहाड़ ते जाण वास्ते। तां ओ बोली, हाँ बेटे नवीन दसो सलूनो नूं मिश्री दा स्वाद क्यों नहीं आया। हुण तुसी भी दसो बच्चो, सलूनो नूं मिश्री दा स्वाद क्यों नहीं आया। क्योंकि सलूनो ने आपदे मूँह विच लूण दी वड्डी डली रखी हुई सी। नवीन बोलिया कि उन्हें तो ऑलरेडी आपदे मूँह विच नमक रखिया होया सी, तां ओनू स्वाद किवें आंदा, ठीक है। हुण बच्चों मान लो बच्चों तुसी खाना है डोसा, और तुहाडे मूँह विच मैंगो है, तुसी मैंगो नू कढोगे या अंदर खा जाओगे फिर ही आप डोसा खाओगे, ठीक है। मूँह विच तुहाडे मैंगो है तां तुहानू डोसे दा टेस्ट किवें आएगा, नहीं आएगा ना। तां मैं डोसे दा टेस्ट लैण वास्ते तुहानू मैंगो नू तां छड्डना ही पएगा, ठीक है। वो काम सलूनो ने नहीं कीता। बिल्कुल ठीक, उन्होंने दसिया सी ना नवीन ने कि उन्हें आधे मूँह विच लूण दी डली रखी हुई सी, इस वास्ते उन्हों मिश्री दा टेस्ट नहीं आया। तो नानी जी ने कहा बिल्कुल ठीक, सारे राह ओदे मूँह विच उही लूण दी डली घुमदी रही, मिश्री दा स्वाद तां उह तां चख ही नहीं सकदी सी। क्यों नहीं चख सकती, उन्हें लूण आपदे मूँह विच रखिया होया सी। वह तां ओ मिश्री दा स्वाद तां चख सकदी सी जे वह लूण दी डली नू मूँह विचों कढदी बाहर सुटदी। आह जिह अनिशा प्रयोग करदी सी कि खाली बोतल विच हवा हुंदी है, हुण हवा किवें निकलेगी, हवा निकलेगी जदों आपां ओनू पानी विच पावांगे, पानी विच पावांगे तां हवा बाहर निकलेगी, जे हवा बाहर नहीं निकलेगी तां पानी नाल बोतल भी नहीं भरी जाएगी, ठीक है। जे बोतल विच हवा बाहर निकलूगी तां ही पानी अंदर जाएगा, जे अवगुण दूर होणगे तां ही उन्हां दी थावें गुण ग्रहण कीते जा सकणगे, ठीक है ना। नानी जी ने फिर पूछा, तो बच्चों इस लाइन का अर्थ है क्योंकि ओदा विषय सी नवीन दा अवगुणां नूं छड्ड के गुण किवें ग्रहण कीते जाण, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नानी जी ने दसिया है कि असी अवगुणां नूं जदों आपदे अंदरों कड्डांगे तां ही असी गुण ग्रहण कर सकांगे। तो गुण वास्ते सानू वो जगह भी तो खाली करनी पएगी, जेड़े अवगुण साडे अंदर बुरियां आदतां ने उन्हां नूं असी छड्डांगे तां ही चंगियां अपनावांगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक, पर नानी जी सब तो जरूरी गल है कि विश्वास, गुणवान बंदे उत्ते विश्वास सानू करना चाहिदा है। तो सानू भी किसी उत्ते विश्वास करना चाहिदा है, गुणवान आदमी उत्ते विश्वास करना चाहिदा है। अगर सलूनो मिठो उत्ते विश्वास कर लैंदी तां उनका मूँह मिठा हो जांदा। उन्हें की कीता सी, सलूनो ने मिठो उत्ते विश्वास नहीं कीता सी, ठीक है। जे सलूनो कीड़ी मिठो ते विश्वास करदी तां लूण दी डली मूहों विच लिजांदी ही क्यों, घरों ही नहीं लेके जाना सी ओनू, ठीक है। नवीन ने होर नुक्ता
ਸਦ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੂਣ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਘੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਖ ਕੇ ਨਵੀਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੋਂ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੋ ਕੀੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।